Okay, so few minutes of today's session will be devoted to graph plotting and how does it look like. There are many free software, and if you're using Android phones or Apple iPhone, they are all available for free. For example, y equal to 2x, ये जो ग्राफ है, it is a straight line passing through origin. So you can actually plot any graph you want. जैसे y equal to 2 into x, straight line passing through origin. Okay, I hope you can see this graph. For example, if you want to plot y equal to x square, so this is how it looks like. For example, if you want to plot y equal to x square minus 2, देखो पैराबोला ही है, सिर्फ शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ, -3 और नीचे शिफ्ट, प्लस 2 ऊपर शिफ्ट, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. ओके, अगर मैं x इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू y स्क्वायर करता हूं, if I do x equal to y square, so this is a parabola which is symmetric about x axis. अगर मैं x equal to y square plus 1 करता हूं, तो the vertex of the parabola is at 1 0. अगर मैं x equal to y square plus 2 करता हूं, तो vertex of the parabola is at plus 2. अगर मैं x equal to y square minus 1 करता हूं, तो vertex of the parabola is at minus 1. If I do it minus 2, तो minus 2. अगर आपको क्यूबिक फंक्शन प्लॉट करना है, तो यू वांट टू प्लॉट y equal to x cube. So you can also plot y equal to x cube basically. So y equal to x cube looks something like this, right? Correct? If you want to plot y equal to x cube plus 1, yes. If you want to plot plus 5, yes. Right? Correct. तो आपके पास मोबाइल फोन्स में, आपके पास ऑनलाइन, there are many such tools available. If you want to plot y equal to 2x plus 3, y equal to mx plus 3 मतलब, so this is a straight line with y intercept plus 3. -3 करोगे तो y intercept -3 होगा. Correct. So what I will suggest you is that make good use of technology. आपके पास लैपटॉप्स और फोन्स होते हैं, उस पे हर एक टाइप का ग्राफ प्लॉट हो सकता है. तो just practice it and just see. Okay, so let's now go back to what we were supposed to do today, right? So if you remember, मैंने आप लोगों को बताया था that हमारा जो एक टेस्ट होगा वो बैक ट्रेसिंग तरीके से होगा. बैक ट्रेसिंग मतलब 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर हो गया, 3 पे टेस्ट, फिर 2 पे टेस्ट, फिर 1 पे टेस्ट, या फिर 1 पे और 2 पे. आई मीन इट इज जस्ट that I want you to go back to what you have learned in basics and then give test. ये तरीका जरूरी होता है so that you keep on revising. So I have already scheduled a test for you, and that test is this Saturday at 6 p.m. units, dimensions and measurements. तो ये पूरा वीक हम लोग यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए थे जेडब्ल्यू नीट में, वो सॉल्व करने वाले हैं, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ नीट क्वेश्चंस टुडे.
So the first question here appeared in 2015 NEET exam. Okay, so pehla question, what does it says? If dimensions of critical velocity Vc of a liquid through a tube are expressed as, so we are expressing dimensions of critical velocity. Velocity के dimensions जो है it is expressed as eta raised to x, rho raised to y and r raised to z, where eta, rho and r are coefficients of viscosity of liquid, density of liquid and radius of the tube. Coefficient of viscosity I am very sure आपको नहीं पता, तो I will just tell you how much you require, and then because this will come in later stages when we will start fluid mechanics. तो देखो क्या होता है, any liquid is assumed to be made up of number of layers. ओके okay? किसी भी दो लिक्विड लेयर में फ्रिक्शन होता है, राइट, इसको बोलते हैं विस्कस फोर्स. दैट विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर, मतलब ये जो लेयर का एरिया है, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट. व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट? देखो जो बॉटम लेयर है उसका वेलोसिटी 0 होता है, ओके okay? फिर ऊपर का लेयर का वेलोसिटी पहले से ज्यादा होता है, थर्ड का दूसरे से ज्यादा होता है, so on so forth. मतलब with distance x velocity is changing and that is called as velocity gradient dv by dx. So this viscous force is equal to some constant of proportionality eta a dv by dx. This constant of proportionality is called as coefficient of viscosity. Therefore eta is equal to viscous force upon a dv by dx. विस्कस फोर्स के डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए, है ना. फोर्स तो फोर्स है, फोर्स के डायमेंशंस निकाल सकते हो, एरिया के डायमेंशंस आप निकाल सकते हो, dv by dx के डायमेंशंस आप निकाल सकते हो. फोर्स के डायमेंशंस पता है आपको, m1 l1 t minus 2, एरिया मतलब लेंथ रेज टू 2, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, क्योंकि dv by dx मतलब वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, वेलोसिटी इज basically l1 t minus 1, distance is l1, cancel cancel, राइट. तो ये सॉल्व करने के बाद m1 l minus 1 और t minus 1, these are the dimensions of coefficient of viscosity, करेक्ट. देन डेंसिटी के हमको पता नहीं, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो डेंसिटी के डायमेंशंस पता होने ही चाहिए. m1 l minus 3 मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ओके. r इज जस्ट रेडियस, तो लेंथ रेज टू 1 आएगा, correct. Now you know all these dimensions, you know dimensions of eta, you know dimensions of rho, so you can solve this question easily now. फिर आप बोल सकते हो therefore dimensions of critical velocity is equal to dimensions of eta raised to x, और eta के dimensions मैंने बता दिया आपको, m1 l1 m1 l minus 1 and t minus 1 raised to x, रो के डायमेंशंस m1 l minus 3 raised to y and r के डायमेंशंस l1 raised to z, और वेलोसिटी के डायमेंशंस आपको पता होते ही है. सो आई विल जस्ट से इक्वेशन नंबर 1, आई विल से 2 3 4, देन फ्रॉम 1 2 3 and 4, what you will have is वेलोसिटी के डायमेंशन जो है वो है l1 t minus 1. फिर वही आप जैसे नॉर्मल मेथड से बोलते हो कि इन सब का बेस से मैं तो पावर कंबाइन करोगे x plus y, l raised to minus x minus 3y plus z, okay, and t raised to minus x. So you will solve this all, ये आप सब सॉल्व करोगे and then you will find out, okay, what they are asking you. They are asking you to find out x, y, z की value, correct. This is one way of solving it.
तो डेफिनेटली आपको यहाँ से x की वैल्यू 1 मिल जाएगी एंड y की वैल्यू -1 मिलेगी एंड z की वैल्यू आपको मिलेगी -1 आफ्टर सॉल्विंग दिस. This is one method which is lengthy method. What is easy then? Easy method ये है कि जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स चालू करेंगे, मतलब विस्कोसिटी इन थियरी हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो हमको एक इक्वेशन मिलता है, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर r into eta upon 2 rho into r. ये थियरी से आता है. व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर? ये रेनॉल्ड्स वही रेनॉल्ड्स है जिस कंपनी का आप कभी पेन यूज करते थे. मतलब वो कंपनी का ओनर नहीं है बेसिकली, बट रेनॉल्ड्स ने फ्लूइड मैकेनिक्स पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया है. दैट इज व्हाई दैट कंपनी वाज नेम्ड रेनॉल्ड्स to respect him basically. But this Reynolds number tells you if the flow is steady or turbulent. ये सब हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं. फिलहाल डायमेंशंस हमको यूज करना है. मैंने आपको बता दिया कि आप क्या करोगे. मैंने आपको बता दिया कि ईटा क्या है, क्योंकि दिस इज द ओनली थिंग दैट यू डिड नॉट नो. वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है. ओके, देन अगर आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रह गया फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर इज जस्ट अ नंबर. इट इज जस्ट अ नंबर. ईटा का पावर क्या है यहाँ पे? ईटा का पावर क्या है यहाँ पे? 1. यहाँ पे ये 1, ये 1. तो मैं क्या करूंगा, r और 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो आई विल राइट डाउन Vc is proportional to eta raised to 1 rho raised to -1 r raised to -1. हमने eta raised to x बोला था, rho raised to y बोला था एंड r raised to z बोला था. तो x1 y -1 z -1 ऐसा भी आ सकता है. तो देखो हाउ थिंग्स बिकम इजी इफ यू रिमेंबर थियरी एंड इफ यू रिमेंबर फॉर्मूलाज. तो ये सारा का सारा डायमेंशनल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं थी, बट बिकॉज यू आर एट द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द कोर्स, what you should know is this. आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए, फिर आपको डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. देयर इज नो वे आउट फॉर द टाइम बीइंग. यू विल हैव टू डू इट और यू हैव टू रिमेंबर दिस. तो 2015 का क्वेश्चन था ये. ओके, गुड. नेक्स्ट, if energy E, velocity V and time t are chosen as the fundamental quantities, the dimensional formula of surface tension is. By the way, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिया है, हमारा ये क्वेश्चन ऑलरेडी हुआ है. ओके, बट नाउ आई एम गोइंग टू यूज अ डिफरेंट अप्रोच. मतलब मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि सरफेस टेंशन को मैं S बोल दूंगा, फिर मैं बोलूंगा कि S इज प्रोपोर्शनल टू E रेज टू x V रेज टू y T रेज टू z. फिर मैं सरफेस टेंशन के डायमेंशंस लिखूंगा, फिर मैं एनर्जी के डायमेंशंस लिखूंगा, मैं वेलोसिटी के डायमेंशंस लिखूंगा, रेज टू y करूंगा, टाइम के डायमेंशंस करके रेज टू z करने वाले हैं. फिर हमको पता है सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ होता है, तो सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ. ओके, तो एनर्जी के डायमेंशंस पता होने चाहिए. m1 l1 t माइनस m1 l2 t माइनस 2 ये एनर्जी होता है रेज टू x. वेलोसिटी l1 t माइनस 1 होता है रेज टू y, और टाइम तो टाइम ही है रेज टू z. फिर फोर्स के डायमेंशन पता होने चाहिए, m1 l1 t माइनस 2, और नीचे और एक l है, राइट. गुड. तो ये l और ये l कैंसल होगा. फिर आप लिखोगे यहाँ पे m रेज टू x, l रेज टू 2x and t रेज टू -2x minus y plus z, राइट. फिर आप इक्वेट करोगे, आप बोलोगे सेम बेस तो पावर भी सेम, तो आप बोल दोगे x इक्वल टू 1 आ गया. ये y है बाय द वे, करेक्ट. l रेज टू 2x plus y, 2x plus y. ओके, सो एनीवेज, ओके, तो फिर आप बोलोगे 2x plus y इज इक्वल टू 0, करेक्ट. तो यहाँ से आपको y मिल गया -2 सॉल्व करने के बाद. ऑफकोर्स y इक्वल टू -2x है, तो y x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू -2 आएगी. एंड देन लास्टली आप बोलोगे -2x minus y plus z इक्वल टू -2. फिर सॉल्व करोगे तो आपको
z की वैल्यू मिलनी चाहिए -2. तो x1 y -2 z -2. Therefore surface tension is equal to e raised to x मतलब 1, v raised to y मतलब -2 and t raised to z मतलब -2, मतलब ऑप्शन नंबर बी. ये था मेथड 1 जो हमने ऑलरेडी किया है, पहले भी ये क्वेश्चन हमने किया है. मेथड 2 is surface tension is force upon length. याद रखना E, V और T के टर्म्स में लाना है. E, V और T के टर्म्स में लाना है. फोर्स अपॉन लेंथ. ओके, E मतलब एनर्जी, बराबर, E मतलब एनर्जी. बट एनर्जी इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. बट व्हाट इज एनर्जी? तो what I will do is I will just adjust 1L multiply divide by length. सिंपल. क्यों? क्योंकि ये F इंटू L बन गया एनर्जी, नीचे आ गया L स्क्वायर, मतलब एनर्जी तो आ गया कम से कम इक्वेशन में. ओके, राइट. सिंस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लेंथ इज एनर्जी, therefore S is equal to, अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे जबरदस्ती का V एडजस्ट करना है. V क्या है? L अपॉन टी. लेकिन हमारे पास L स्क्वायर बचा हुआ है यहाँ पे, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको मैं ऊपर और नीचे टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो सिर्फ टी स्क्वायर एडजस्ट किया है क्योंकि टाइम भी लाना था ना, तो वेलोसिटी भी लाना है, टाइम भी लाना है. तो E अपॉन L स्क्वायर. तो एक काम ऐसा करते हैं, काम थोड़ा कम कर देते हैं हम लोग. What we will do is this, ये जो है इसको ऐसा करेंगे, L स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ऐसा यहीं पे एडजस्ट कर लिया. क्यों? क्योंकि आ गया E L बाय टी, लेंथ अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, V स्क्वायर टी स्क्वायर. हो गया एडजस्टमेंट. E, V और T आ गया. फिर सरफेस टेंशन आ गया E V रेज टू -2 T रेज टू -2. तो देखो वही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी. अभी आपको ये सोचना है कि कौन सा मेथड आप प्रिफर करोगे सॉल्व करने के लिए. ओके, विच मेथड डू यू वांट टू गो फॉर? डू यू वांट टू गो फॉर मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2? मेथड नंबर 2 मैंने यहाँ पे भी लिखा है वैसे. Here is also I have already written, so I'll just delete it because we don't need it. Okay, so what I want to demonstrate here is it is not required that you keep on using dimensional analysis always. It is not required at all. ये मेथड 2 था. मेथड 3 भी एग्जिस्ट करता है. ओके, मेथड 3 सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो यूनिट्स की बात करता हूं, अगर मैं काम करता हूं क्वांटिटी SI यूनिट्स, ऐसा लिख लेता हूं. सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ. फोर्स इज न्यूटन और अपॉन मीटर, राइट? न्यूटन अपॉन मीटर, बट न्यूटन इज व्हाट? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर याद होगा, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक लेंथ, क्योंकि दिस इज F/L है ना, तो नीचे और एक मीटर आ गया, बराबर ना. फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज फोर्स अपॉन लेंथ. मतलब in short what I am expecting from your side is that you know this is kilogram per second square SI unit. Correct. Energy half mv square kilogram meter square per second square. Velocity distance upon time x by t, that is L1 T1 मतलब meter per second basically, and time is time second.
करेक्ट। आपको सिर्फ क्या चेक करना है, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट्स। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए लेता, ई वी -1 टी -2, ई मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, वी -1 मतलब सेकेंड बाय मीटर, टी -2 मतलब सेकेंड रेस टू -2 मतलब 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है कि ये नहीं आएगा ना, ये आपको किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर नहीं मिलने वाला, राइट। तो अगर ऑप्शन नंबर बी उठाओगे, ऑप्शन नंबर बी के लिए यूनिट्स चेक करोगे, तो what you will get, units of e v raised to -2 t raised to -2 will give you units of surface tension। मेथड नंबर 3 मेथड, एक डायमेंशनल एनालिसिस जो सीखा है, दूसरा बेसिक फॉर्मूलास, तीसरा यूनिट्स। ओके, तो आपको जैसे करना है आप वैसा करो, इट इज अप टू यू हाउ डू यू वांट टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, प्योरली अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, Planck's constant h, speed of light c, and Newton's gravitational constant g are three fundamental constants. Which of the following combinations have dimensions of length? Okay, then, right, so Planck's constant क्या होता है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। Yes, if you have some problem with the screen, rejoin please। Okay, हमको पता है एनर्जी ऑफ अ फोटोन, फोटोन क्या होता है, लाइट। तो एनर्जी ऑफ अ फोटोन E is equal to h into frequency, this is frequency, no। तो प्लैंक्स कांस्टेंट h is energy upon frequency। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन मतलब एनर्जी के डायमेंशन अपॉन फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन। ओके, करेक्ट, गुड। देन एनर्जी के डायमेंशन मैंने अभी बताया, m1 L2 t -2 अपॉन फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन t -1 होता है। दिस इज व्हाट यू शुड नो। ओके, देन Planck's constant के dimensions, finally after doing all this you will get m1 L2 t -1, these are dimensions of Planck's constant। okay, then speed of light in vacuum is c के dimensions तो speed के ही होंगे, L1 t -1। alright, universal gravitational constant, आपको पता है force due to gravity is nothing but a constant g, मास m1 m2 by distance square। तो आपको पता है g is equal to fr square upon m1 m2। so what you should know is this, g is f के dimensions, r square के dimensions, मास 1 और मास 2 के dimensions। मतलब g के dimensions आपको मिलेंगे, force is m1 l1 t -2, mass into acceleration। ओके, उसके बाद r is length, already length raised to 2 upon mass 1 is mass, mass 2 is mass, मतलब m raised to 2, मतलब आपको मिल जाएगा m -1 L3 t -2 as the dimensions of universal gravitational constant। okay, right, now you will say कि अगर मुझे लेंथ चाहिए तो what I will do is, मैं बोलूंगा कि लेंथ चाहिए ना, तो लेंथ इज इक्वल टू h raised to x, c raised to y, g raised to z। फिर डायमेंशंस ऑफ लेंथ इज l raised to 1। h के डायमेंशन जो होते हैं आपके पास वो है m1 l2 t -1 raised to x, c के डायमेंशंस थे L1 t -1
रेस टू वाई, जी के डायमेंशंस थे m-1 L3t-2 रेस टू z। फिर आप इसको बेसिकली इक्वेट करोगे L1 on the left hand side, m raised to x minus z, L raised to 2x plus y plus 3z, and t raised to minus x minus y minus 2z. Therefore, you will say x minus z should be equal to 0. 2x plus y plus 3z should be equal to 1, and minus x minus y minus 2z equal to आपका 0 आना चाहिए। सब सॉल्व करने के बाद you have to solve by yourself. I am just telling you I am just telling you the way you have to solve this. ये सब solve करने के बाद you should get the value of x to be half, the value of z to be half, and the value of y to be 3/2. और ये x, y, z की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। माय रोल, माय जॉब वाज टू टेल यू कि प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट कहाँ पे आता है? जो लाइट हमारे पास आता है, बी इट लाइट फ्रॉम द सन या जो ट्यूबलाइट आपने चालू किया उसका जो लाइट होता है, उसमें से जो फोटॉन्स निकलते हैं, हर एक फोटॉन का एनर्जी होता है ए इक्वल टू एच न्यू। मतलब there are small packets of light which are coming out from a source of light. Each has energy of h nu. Nu is frequency, h is Planck's constant. तो Planck's constant is E upon frequency. तो Planck's constant का आपको पता होना चाहिए dimensions m1 l2 t-1. Okay, right. Then velocity, speed का dimension तो पता ही है। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के डायमेंशंस कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया। फिर आप नॉर्मल मेथड अप्लाई करते हो एंड यू जस्ट गेट द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज मेथड 1। मेथड टू ये है कि आप यहां से और यहां से, इन तीन चीजों से, इन तीन डायमेंशन से आप एच, सी और जी के यूनिट्स निकाल लो। जैसे कि एच के यूनिट्स आएंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, सी के तो पता ही है मीटर पर सेकेंड होता है। जी के यूनिट्स आएंगे मीटर क्यूब किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, और सी का तो आपको पता ही है मीटर पर सेकेंड। तो इन सब के यूनिट्स ऑप्शन ए में डालो, चेक करो लेंथ आता है क्या। ऑप्शन बी में डालो, चेक करो लेंथ आता है क्या। तो दिस इज अदर वे ऑफ डूइंग इट। तो ये सारा काम जो है आपका, ये पूरा ये बच जाएगा। यू डोंट हैव टू पुट टाइम ओवर हियर, यू नीड टू बी स्मार्ट। डायमेंशन से यूनिट्स आते हैं तो हम यूनिट्स का यूज करके देख लेंगे मीटर आता है क्या। मीटर आता है तो ऑप्शन नंबर बी, नहीं आता है तो आगे देखो सी चेक करो, डी चेक करो, राइट। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू अ ट्रिक। ऑब्जर्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक ट्रिक आप समझ लो, लेंथ के लिए कभी भी एच और सी का प्रोडक्ट नहीं आ सकता। बेटर टू से लेंथ डायमेंशंस आने के लिए एच और जी का प्रोडक्ट आना ही चाहिए। क्यों? अगर एच और जी का प्रोडक्ट नहीं आया, देखो एच और जी का प्रोडक्ट आया तो क्या होगा। एच के यूनिट्स क्या थे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जी के क्या थे, मीटर क्यूब किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। तो किलोग्राम किलोग्राम कैंसल होगा ही नहीं अगर आपने एच और जी का प्रोडक्ट नहीं लिया तो। हाँ, तो लेंथ में का किलोग्राम आता है क्या, मीटर आता है ना, तो कैंसल होना चाहिए ना किलोग्राम।
तो ऑप्शन नंबर ए और सी तो डेफिनेटली नहीं थे, क्योंकि उसमें एच और जी का प्रोडक्ट नहीं था, क्योंकि सी में तो वैसे भी मीटर पर सेकेंड है। तो सी इज लाइक मोर लेस ट्रबलिंग एक्चुअली, सी हमको तकलीफ नहीं देता है, एच और जी तकलीफ देने वाले दो चीजें हैं। सॉरी। So this is a trick that one should make by oneself. H और J का प्रोडक्ट लेंथ के डायमेंशंस आने के लिए मैंडेटरी है। ओके, तो दिस इज हाउ you will solve this question. 2016 NEET question was this. Fourth, वापस से उसी टाइप का क्वेश्चन है। The physical quantity having the dimensions of length that can be formed from, सिर्फ यहाँ पे क्या किया, C पता है मीटर पर सेकेंड है, जी मैंने अभी अभी आपको बताया, याद होना चाहिए, नहीं याद है तो ठीक है, याद कर लेना, मीटर क्यूब किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, मीटर क्यूब पर किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। अब आपको पता होगा फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by R स्क्वायर, एप्सिलॉन 0 बोल लो, ठीक है, E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, ई स्क्वायर, अगर दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल मैंने इलेक्ट्रॉन ले ली, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है, ओके, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, माइनस ई मतलब ई स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। तो ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बराबर, तो देयरफॉर फोर्स इनटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, करेक्ट। फिर इसके यूनिट्स क्या आएंगे, फिर ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 के यूनिट्स क्या आएंगी, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर इनटू मीटर स्क्वायर बेसिकली, है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स आ गया इनटू डिस्टेंस स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर, मतलब ओवरऑल आपको मिलेगा किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस, ये भी एक चीज है दैट यू नीड टू रिमेंबर, टाइम बचाना होता है तो क्या करेंगे, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, चार ऑप्शन में से सिंपलेस्ट ऑफ ऑल कौन सा है, डी, 1/c जी ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके यूनिट्स चेक कर लो, 1/c मतलब सेकंड पर मीटर, जी इस मीटर क्यूब किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, राइट। आर वी गेटिंग लेंथ, किलोग्राम कैंसल हो गया, सेकंड सेकंड क्यूब बच रहा है नीचे, मतलब ओवरऑल आपका आ रहा है मीटर रेज टू 5 अपॉन सेकंड क्यूब, ये लेंथ नहीं होता ना, तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन। फिर क्या करेंगे, फिर आप ये करोगे, ओके, देन यू हैव टू बेसिकली योर ऑब्जर्वेशन शुड बी रियली स्ट्रांग, रियली स्ट्रांग। तो अभी फिलहाल तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं, 1/c स्क्वायर g into e square by 4 pi epsilon 0 raised to half, 1/c स्क्वायर मतलब सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, g यू नो g मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, यह आएगा आपका किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर रेज टू हाफ, किलोग्राम किलोग्राम गया, आपके पास बचा सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, मीटर रेज टू 6 सेकेंड रेज टू 4 रेज टू हाफ, मतलब सेकेंड स्क्वायर मीटर रेज टू 6/2 दैट इज m रेज टू 6/2 s रेज टू 4/2, मतलब सेकेंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर m रेज टू 3 अपॉन s रेज टू 2, कैंसल 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 कैंसल, सिर्फ एक मीटर बचा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज लेंथ।
तो अभी आप खुद सोचो कि डायमेंशंस अच्छा कि यूनिट्स अच्छा। वो डायमेंशंस में बार बार l raised to x y raised to, I mean this is quite lengthy. Okay, so our aim is to make it short. 2017 नीट का क्वेश्चन था ये। फिफ्थ, ये ओरली होना चाहिए, ओरली, दिस शुड बी डन ओरली। 14% is the answer. फिजिकल क्वांटिटी A is related to 4 observations. हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है A जो a स्क्वायर बी क्यूब c अंडर रूट ऑफ d से बना हुआ है। परसेंटेज एरर इन A, B, C, D आर 1, 3, 2, 2। मैं आपको बता देता हूं कि आपको डेल्टा A बाई ए मल्टीप्लाइड बाय 100 दिया है 1%, आपको डेल्टा B बाई बी मल्टीप्लाइड बाय 100 आपको दिया है 3%, आपको डेल्टा C बाई सी मल्टीप्लाइड बाय 100 आपको दिया है 2%, आपको डेल्टा D बाई डी मल्टीप्लाइड बाय 100 आपको दिया है 2%। करेक्ट। तो आप डेल्टा A बाई ए इंटू 100 कैसे निकालते हो, मैंने बताया था। पावर A का पावर डेल्टा A बाई ए इंटू 100 प्लस 3 मतलब B का पावर डेल्टा B बाई बी इंटू 100 प्लस C का पावर -1, लेकिन हम लोग कभी माइनस नहीं लिखते हैं, यहाँ पे 1 ही लिखेंगे, डेल्टा C बाई सी इंटू 100 प्लस D का पावर -12, लेकिन हम माइनस नहीं, क्योंकि रूट डिनोमिनेटर में है ना, इसलिए -12, लेकिन हम माइनस नहीं लिखते। तो हाफ डेल्टा D बाई डी इंटू 100। तो ये आएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा A बाई ए इज 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा B बाई बी इंटू 100 इज 3 प्लस 1 टाइम्स ऑफ डेल्टा C बाई सी इज 2 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ 2। ये आ गया 2 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1, आ गया 14%। ये है ट्रेडिशनल मेथड। आई वॉज जस्ट लुकिंग एट इंडाइसिस 2 और ए में 1% एरर है, 2 इंटू 1 2, 3 बी में कितना है 3, तो 3 इंटू 3 9, तो 1। देखो क्या होता है ना, यू हैव टू नो दिस, ए का पावर 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए मतलब 2 इंटू 1 इज 2, बी का पावर 3 इंटू परसेंट एरर इन बी मतलब 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 11 तो ऑलरेडी हो गया। अभी जब दे गिव स्टूपिड ऑप्शंस है, दिस इज क्वाइट स्टूपिड। जब अकेले बी में परसेंटेज एरर अकेले बी की वजह से 3 इंटू 3% 9, अकेले बी की वजह से 9% एरर है, तो सी और बी तो ऑप्शंस हो ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। देन ओके, देन 2 into percentage error in A, that is 1, मतलब 2 into 1 is 2, 3 into percentage error in B, that is 3 into 3 9, 9 plus 2 is 11, यहाँ पे पावर 1 है, पावर 1 है, 1 into percentage error is 2 here, तो 9 plus 2 plus 1, ऐसा तो हो ही गया, right? 9 plus, I mean what I'm saying, I hope you're following, 2 ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ से 2% 2%, यहाँ से 9% 11%, यहाँ से और 2% 13%, यहाँ से हाफ इंटू 2 मतलब 1%। तो ओरल ही देख के समझ में आना चाहिए, 2 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 इज 14। दिस इज हाउ यू डू इट, दिस इज द वे यू शुड बी डूइंग इट। Okay, then it is sufficient for today and we will stop.